ہمارے بزرگ خدا، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں، ہم تیرے بزرگ نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ساری زمین پر بے شک ہے خدا تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں کے آسمان پر بھی ہے خداوند تو بلندوں والا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے شکر گزار ہیں باپ کہ ہم نکمے، ہم ناچیز بے وقوف لوگوں کے درمیان میں تو بستا ہے خدا۔ تو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے یہوہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہے خدا۔ ہم اس عظیم رشتے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس عظیم جلالی یسوع نام کے لیے شکر کرتے ہیں خدا۔ بے شک ہے خدا تیرا ہاتھ بڑھا رہتا ہے تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں پر، تو ہماری کمک ہے، ہماری ڈھال اور ہماری سپر ہے خدا۔ یہ ہماری خود کی اپنی بے وقوفیاں ہیں خداوند، ہم اپنی ہی مصیبتوں میں مشکلوں میں مبتلا ہیں خدا، لیکن ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خدا ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے خدا۔ ہم تیری تعظیم کرتے ہیں۔ آج شام جتنے جانے یہاں موجود ہیں خداوند، سارے بچے بزرگ بڑے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، تیرے خادم کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خدا، اس گھر کی در و دیوار کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، تیرے کلام کو جو عمدہ اور عمیق باتیں بیان کرتا ہے خدا اپنے لیے مانگ لیتے ہیں خدا۔ تو ہمارے کانوں کو کھول، ہمارے ذہنوں کو کھول ہے خدا، ہمارے دلوں کو نرم کر ہے خدا، اپنے بندہ کو اپنے کلام کو بیان کرنے کا فضل دے خدا، تاکہ جو کچھ تیری طرف سے ہے وہ وہی کہے ہے خدا، اور تیرا ہاتھ ہم پہ بڑھا رہے، تیرا جلال تیرے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوا خدا۔ بے شک تو نے اپنے ہر نام سے ہم تیرے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وقفت کرتے ہیں خدا، اپنے جلالی یسوع نام کو مانگتے ہیں، ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کا فضل دے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین آمین۔ آئیے اپنی جگہ پہ ہم تشریف رکھیں گے، آمین، پریز دا لارڈ۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایک بار پھر ہمیں وقت بخشا ہے، موقع بخشا ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں، اس کے کلام کو سن سکیں، آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ موت کے بعد اس کی پرستش نہیں ہو سکتی، قبر میں کون اسے یاد کرے؟ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں جو اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں اس کی پرستش کریں، آمین۔ اور سب سے بڑی بات، اور ہم نے زبور بان میں بھی گایا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت تے کرنے آئے شکر خدا، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری، کریے یاد صدا، آمین۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اور آج کا جو ہمارا کلام ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ جو عنوان ہے وہ بھی یہ ہے
कि डिस्क्रिमिनेशन में अपने खुदा को याद रखें। जब आप सताए जाते हैं, जब आप दुख में हैं, keep remember the word of God. आमीन, आमीन। करिए याद सदा, आमीन। और फिर रात के टाइम पे अपनी वो रहमत को, अपनी शफकत को हम पर जारी कर देगा, आमीन। जब हम उसे याद रखेंगे। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। और मैंने सीखा इस बात को, और हमारे उस्ताद हमें सिखा रहे थे और वो बता रहे थे, जब हम इस जमीन पर हैं, हम हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है या मेरा सगा भाई है क्यों ना हो, मेरी सगी बहन क्यों ना हो, he और she will deceive me, वो मुझे दुख पहुंचाएगा जब हम किसी इंसान पर भरोसा रखें। ठीक है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शख्स इंसान पर भरोसा रखता है वो हमेशा क्या दुख उठाएगा। और आज भी हम सीखेंगे इस बात को खुदा के कलाम में से, और बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारे पास पैदाइश की किताब में से, यूसुफ के ताल्लुक से, कि किस तरह से उसके भाइयों ने उसे रिसीव किया, किस तरह से उसके भाइयों ने उसे हर्ट किया, किस तरह से उसके भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत थी, जबकि वो अपने उन तमाम भाइयों में सबसे क्या था, छोटा था। वेरी गुड। वो अपने तमाम भाइयों में से सबसे छोटा था। और एक बात और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमें दूब नहीं क्या ठहराया है, सर ठहराया है। उसने हमें शाही कायनों का फिरका ठहराया, और कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि दाऊद क्या कर रहा है, वो खुदा की परस्तिश कर रहा है, वो भी अपने भाइयों में सबसे छोटा है और बच्चा है। बनी इस्राएल ने सैमुएल के हुजूर में अर्ज की है, इल्तिजा की है कि हमारे दरमियान कोई बादशाह मुकर्रर कर जो हम पर हुक्मरानी करे। सैमुएल इस बात से बड़ा ही इरिटेट हो जाता है, कहता है कि बनी इस्राएल कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा जो है वो आप इनके ऊपर सल्तनत कर रहा है, खुदा ने आप अपनी आंखें इन पर रखी हैं, और बनी इस्राएल बादशाह मांग रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि उन्होंने चुन लिया, साउल को चुन लिया कि वो उन पर क्या करे, हुक्मरानी करे। और एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ है, साउल की वजह से, उसके डिसीजंस की वजह से पूरे बनी इस्राएल ने दुख उठाया। मैन विल डिसीव यू, ये बात अपने जहन में बिठा लें। जो आदमी है, जो औरत से पैदा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम बता रहा है। किसी भी शख्स पर अंधा एतबार करने की जरूरत नहीं, ये खुदा का कलाम बता रहा है। और जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, जब हम खुदा के नाम से सताए जाते हैं, यूसुफ के साथ क्या हुआ है कि खुदा की नजर उस पर है,
खुदा उससे बोलता है, खुदा उससे कलाम करता है, खुदा ने उसे एक ऐसी हिकमत बख्शी है कि वो ख्वाबों की ताबीर बयान करता है। और इसी मुकाशफा के वसीला से, इन्हीं बातों के वसीला से वो अपने भाइयों में डिस्टिंग्विश है, डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि खुदा की नजर उस पे है। जब खुदा की नजर हम पे है, जब हम उसके बेटे बेटियां हैं, जब हम उसके नाम से कहलाए जाते हैं, तो कीप दिस थिंग, हमेशा इस बात को अपने पल्लू से बांध लें। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने गले में तोप की मानिंद पहन लिया है, ताकि तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं। इस बात को जान लें कि जब हम उसके नाम से कहलाए जाते हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी। आमीन। हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। आमीन। अगर हम ऑर्डिनरी हैं तो हमारा खुदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आमीन। इस बात को हमेशा से जान, कभी भी अपने आप को किसी से कम न समझें। आमीन। क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटे, जब खुदा की नजर हम पे है, हाँ मुसीबतें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लोग आपको सताएंगे, हो सकता है आपको मार भी पड़े, हो सकता है आपको कुएं में भी फेंक दिया जाए, आपको किसी वीराने में फेंक दिया जाए, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स में हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश किताब और उसका 40वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे 23वीं आयत। जी मोनिक। पैदाइश की किताब 40वां बाब 20वीं आयत से 23वीं आयत तक। और तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की और उसने सरदार साकी और सरदार मानकुस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया और वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानकुस को फांसी दिलवाई, जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद न किया, बल्कि उसे भूल गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सबूर 92 पे एक दफा फिर ले जाऊंगा मैं आपको। करिए याद सदा। आमीन। और यहाँ आखिरी बात हमने पढ़ी है कि जो सरदार साकी था वो यूसुफ को क्या हो गया, भूल गया। उसने यूसुफ को याद ना रखा। क्योंकि अगर हम ऊपर की आयतें पढ़े और यूसुफ के हजूर में इन दोनों शख्स को कैद खाना में लाया गया है और यूसुफ जो है उसे कैद खाने का इन दोनों का इंचार्ज बना दिया गया। और एक दिन ऐसा हुआ है कि ये दोनों शख्स जो है, जो बादशाह के बड़े ही क्लोज्ड लोग थे, इन दोनों को ख्वाब आई। एक को ख्वाब आती है कि वो अंगूर की कुछ रस लेकर वो प्याले में डालकर, आप पढ़ लीजिएगा 40वां पूरा बाब, बादशाह को पेश कर रहा है। और दूसरे को ख्वाब आती है कि उसके सर पे कोई टोकरी है और उसमें रोटियां हैं और उसके जो टोकरी में से जो परिंदे हैं वो उस रोटियों को लेकर खा रहे हैं। दोनों को ये ख्वाब आई और दोनों ही बड़े सैड हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, बड़े ही मुंह बना के बैठे हैं। और यूसुफ आता है, कहता है कि भाई जी की मसला है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी हमें ख्वाब आया। क्योंकि यहाँ कलाम में लिखा है कि उसने कहा है कि खुदा की कुदरत से
क्या इन ख्वाबों की ताबीर हो सकती है। यूसुफ ने उनसे कहा है और ये उनको अपनी ख्वाब बताते हैं और यूसुफ उनकी ख्वाब की ताबीर करता है और उन्हें बताता है कि एक जो बादशाह का साकी है वो अपनी पोस्ट पर दोबारा बहाल हो जाएगा और दूसरा जो शख्स है उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और उसको लटका दिया जाएगा और उसका जो गोश्त है वो जानवर खाएंगे, जो परिंदे हैं वो खाएंगे। और यूसुफ ने इस साकी को कहा है कि यार जिधर तू बहाल हो जाएगा तो बादशाह के हजूर में मुझे याद करना, बादशाह से कहना कि यूसुफ नामी शख्स है, हो सकता है उसने ऐसे कहा हो कि जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में था कि खुदा के हजूर गुनाह ना करूं। हम सब वाकिफ हैं क्यों वो जेल में आया, क्योंकि जो फिरौन की वाइफ थी वो उस पर उससे बदी करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात को ना माना। बहुत खूबसूरत शख्स था ये और उसको जेल में डाल दिया। और खुदा की कुदरत ऐसी है कि खुदा ने उस जेल में, उस कैद खाने में भी यूसुफ को सरफराजी बख्शी है। आमीन। अपने बाप के घर में सबसे छोटा होते हुए भी खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी है। उसके भाई जो उसके खिलाफ हो चुके हैं, उसके भाइयों ने उसे बेच डाला है। मिस्र के कुछ सौदागर थे, कुछ ट्रेडमैन थे, वो जो मिस्र को जा रहे थे, उन्होंने उसके आगे उनको बेच डाला है और बाप से जाके कह दिया है कि उसे तो जंगली जानवर खा गया। तो खुदा की कुदरत उसके साथ थी क्योंकि वो खुदा के नजर में था। और आज हमें इस बात को जान लेने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप खुदा की नजर में गिरा कीमत है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे सर के बाल हैं, एक एक बाल जो है ये गिना हुआ है। खुदा की नजर में हमारी जो कदर है वो इन हवा से में उड़ने वाले परिंदों चरिंदों से कई ज्यादा है। आमीन। क्यों हम डिस्टिंग्विश हैं? क्या ऐसी वजूहात है? पैदाइश किताब और उसका पहला बाब, फिर से याद दहाई करवा दूं आपको। वहां लिखा है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता है और खुदा ने अपनी छवि देखी है और खुदा ने क्या कहा है कि आओ मैं अपनी मानिज़ एक इंसान बनाऊं। आमीन। हम खुदा की छवि पर हैं। आमीन। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। आमीन। मूसा को जब पता चला कि खुदा की नजर मुझ पे है, जब मूसा इस मुकाशफा को जान गया कि खुदा ने मुझे बनी इस्राएल का मसीहा चुन लिया है, जब वो जान गया कि मैं वो शख्स हूं जो इब्रानियों के लिए रिहाई का बायस बनूंगा, तो क्या हुआ है? उससे वो सारी शान और शौकत ले ली गई है और उसे क्या कर दिया गया है? जलावतन कर दिया गया। उसे शहर से, मुल्क मिस्र से निकाल दिया गया और बड़ी तकलीफें देखी हैं उसने। और फिर जाकर वो बनी इस्राएल का शाफी बना है। आमीन। लीडर बनना, चुने हुए बरगजीदा बनना आसान नहीं है, बड़ी इसमें स्ट्रगल है।
یسوع مسیح اگر آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہم ابھی ویری سون شاپنگز شروع ہو جائیں گی، ہماری گھروں کی ڈیکوریشن، کرسمس آ رہا ہے، بڑا دن آ رہا ہے، بڑا دن ہے، کرسچنوں کا بڑا دن ہے، ان کی بڑی عید آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس نے ہماری خاطر جان دے دی. آمین. آسان نہیں ہے یہ کام، آسان نہیں ہے چنے ہوئے برگزیدہ ہونا، شاہی کاہنوں کا فرقہ بننا، دمب نہیں بلکہ سر بننا. اٹ ناٹ این ایزی تھنگ. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. آسان نہیں ہے. صرف اور صرف خدا ہی اپنے لوگوں کو بنا سکتا ہے. کمہار کی مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ کمہار ہے جو ایک مٹی کے برتن کو گوندتا ہے، بناتا ہے، اس کو بار بار گوندتا ہے، اور وہ جو مٹی ہے وہ بڑی ہی تکلیف میں رہتی ہے، اسے بار بار آگ میں تپاتا ہے. یہ کہانی ہے پوری. مٹی بار بار کہتی ہے او کمہار تو مینوں کیا کر رہا ہے، مجھے بار بار گوند رہا ہے. وہ اس کو اس کے اندر سے امپیورٹیز، اس کے اندر سے کنکر، اس کے اندر سے ہر وہ چیز نکالتا ہے، اور پھر جو ہے وہ برتن جو ہے ایک زبردست برتن بنتا ہے، اور ایک اچھے بادشاہ کے محل میں وہ برتن جاتا ہے. جب تک ہم برگزیدہ نہیں بنتے اس وقت ہم خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں پہنچتے، جب تک ہم تکلیفوں سے نہیں گزرتے. ٹیسٹ میک یو بیسٹ. آمین. اسکولز میں کیوں ہر مہینے پریلیمز ہوتے ہیں ہمارے بورڈ سے پہلے، پریلیمز، ٹیسٹ، کلاس میں وائوا، ہر چیز کیوں؟ پریپریشن کرتے ہیں ہم اپنی، تاکہ جب ہم فائنل ایگزام میں پہنچیں تو ہم اپنا بیسٹ دے سکیں. آمین. تو جو ٹیسٹ آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، تو نو نیڈ ٹو وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آمین. یہاں اگر ہم 41 باب میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ بھول گیا، وہ دوبارہ سے جب اپنی پوسٹ پر بحال ہو جاتا ہے، وہ بھول گیا. کلام میں لکھا ہے کہ 2 سال کے بعد جو بادشاہ ہے اسے خواب آیا، جو فرعون ہے اسے بھی خواب آیا. وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ دریا ہے، دریا میں سے 7 بیل ایسے نکلے ہیں جو بڑے ہی کمزور سے ہیں، اور 7 بیل ایسے نکلے ہیں جو بڑے ہی طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور جو کمزور بیل ہیں وہ طاقتور کو نگل گئے. بادشاہ نے یہ خواب دیکھی. 2 سال کے بعد 2 years یوسف اسی حالت میں رہا، اسی قید میں رہا، وہی کام روٹین کے کرتا رہا. لیکن ان 2 سالوں میں وہ خدا کے ساتھ پیوستہ رہا، وفادار رہا، خدا کو ڈھونڈتا رہا، اس کام کا انتظار کرتا رہا. اور جب بادشاہ نے وہ خواب اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا تو پھر اس ساقی کو یاد آیا کہ بادشاہ تیری قید میں ایک ایسا شخص ہے، یوسف نامی شخص ہے، جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو بادشاہ اسے کہتا ہے، فرعون اسے کہتا ہے لے کر آؤ اسے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو جب ہم پیچھے کیوں نہ کھڑے ہو تو ہمیں آگے لے آتا. آمین. اور یہ ہماری لائف میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں خدا نے آپ کی لائف میں، آپ کے بچوں کی لائف میں ایسے معجزے کیے ہوں گے کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے نہیں وہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیسا خدا ہے. آمین. تو پھر اس وقت جب اس نے آ کے تعبیر بتائی کہ بادشاہ 7 سال ایسے ہوں گے کہ تیرے ملک کی، پورے ملک مصر کی جو فصل ہے، جو اناج ہے، وہ بڑا ہی زبردست اناج ہوگا، اور اس کے جو نیکسٹ آنے والے 7 سال ہوں گے وہ بہت ہی ڈینجرس ہیں، بہت قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، آسمان جو ہے وہ بند ہو جائے گا،
एक बूंद ना बरसेगी और पूरे मुल्क मिस्र के अंदर फूड नहीं होगी खाने की। तो बादशाह उसे क्या कहता है कि मैं सारा इख्तियार तुझे देता हूं, मैनेज कर इन पूरे 7 सालों को। आमीन। कैसी अमेजिंग बात है कि हम अगर एक छोटी सी पोस्ट पे हो और खुदा हमें उस कंपनी का मैनेजर बना दे या ब्रांच मैनेजर बना दे, हम 30-40 लोगों को मैनेज करने वाले बन जाए। लेकिन यहां खुदा इसे पूरे मुल्क को मैनेज करता। आमीन आमीन। अगर हम आज की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया ये, जो पूरे मुल्क का इन एंड आउट देख रहा है, करेंसी देख रहा है, हर चीज के ऊपर उसकी नजर है कि पूरे मुल्क का जो फ्लो है खाने पीने का, पैसे का, इन एंड आउट, ईच एंड एवरीथिंग उसके कंट्रोल में। आमीन। और जिसके कंट्रोल में फाइनेंस होता है उसके बारे निहारे होते हैं। ऐसे ही है। अगर हमें किसी भी कंपनी का कोई चीज इंचार्ज बना दिया जाए कि पूरी कंपनी का जो राशन है, जो दूसरी चीजें हैं, फाइनेंस को हमने डील करना है, मजे आ जाते हैं। किधर से मुझे काटना है, किधर से मुझे क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, तो दिनों में लोग बनते हैं। आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत काम करें, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब खुदा हमारे साथ है तो हमारे पास खुदा एक जबरदस्त पोस्ट मुहैया करता है। आमीन। याद रखने की जरूरत है उसके उन कामों, उन बातों को, तो फिर जो है हमारा खुदा हमें उन सारे टेस्ट एंड ट्रायल से निकाल कर एक बेस्ट पोजीशन अदा करते हैं। मुकाशवा की किताब बड़ी ही जबरदस्त मुझे लगती है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और मैंने कई बार आपके सामने बयान किया है इस बात को, जाके देख लीजिएगा मुकाशवा किताब। वहां पर यूहन्ना जो है मुकाशवा का जो मुसन्निफ है, वो एक बड़ी भीड़ को देखता है और कलाम में लिखा है मुकाशवा किताब में, उस भीड़ का अनगिनत, जहां दूर तक नजर देखे तो सारे सर नजर आ रहे, तोड़ा ही तोड़ा नजर आ रही है, दूर तक परेशान हो जाता है। और वो कहता है कि मैंने उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग से पूछा कि उस्ताद ए मालिक, ये कौन लोग हैं? और वो बुजुर्ग यूहन्ना से कह रहा है कि तू नहीं जानता भी ये कौन है? कहता नहीं, मैनू नहीं पता। कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर क्या किए हैं? साफ किए हैं। आमीन। और एक बड़ी जंग को फतह करके यहां पर पहुंचे हैं। आमीन। कैसी खूबसूरत बात है कि जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर साफ किए हैं और एक बड़ी जंग लड़कर यहां पर पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? खुदा की बादशाही में। आमीन। खुदा के हजूर से उस ताज को हासिल करने के लिए आए हैं जिस ताज का खुदा ने अपने लोगों से वादा किया है। आमीन। एक बड़ी जंग करके आए। हम एक जंग की हालत में। आमीन। जब तक हम जंग नहीं करते, जब तक हम उस टेस्ट और ट्रायल को पास नहीं करते, तो कोई भी चीज जो है वो हम हासिल नहीं कर सकते। मुश्किल है, आसान नहीं, रिस्क लेने पड़ते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करें, अगर जितनी बड़ी बरकत है उसके लिए टेस्ट एंड ट्रायल्स भी बहुत ज्यादा है। बड़ी मुसीबत, बड़ी बरकत, बड़ी मुसीबत।
आसान नहीं है। आमीन। और इस बात से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा तरोताज़ा है और वो अपने लोगों के साथ रहता है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में इस बात का तजुर्बा किया है और मैं जानता हूँ आपने भी किया होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसकी ज़िंदगी में गवाही है। आमीन। हम सब की ज़िंदगी में गवाही है कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए हैं। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी सारी कुदरत और तेरे सारे प्यार, सारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार। और अब आप आज शाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज शाम तूने हमें बख्शी कि हम तेरे हुजूर में आकर तेरे नाम को जलाल दे सकें, तेरे नाम की मदद सराई कर सकें।